Good morning, class 9th. So today we are going to solve some theorems and exercise 10.1 and 10.2 from NCERT textbook and as well as 10.3 from the NCERT textbook. So we will solve some questions related to our theorems, and we have already discussed more than 15 theorems in our lectures. So let's start today's topic. And the next theorem is equal chords of congruent circles subtend equal angle at the center. As you saw the question of exercise 10.2 from NCERT textbook, the first question is the same as this theorem. And the first question of exercise 10.2 NCERT is given that show that equal chords of a congruent circle subtend equal angle at the center. And question number 2, converse of this question. Question number 2 of 10.2, exercise 10.2 state that if the angles subtended by the chord of two congruent circles are equal, then prove that chords are equal. So first of all, I am going to start these two theorems. This is also the solution of exercise 10.2 two questions, and as well as we will discuss some more questions from another book. So let's start today's session. This is based on our chapter circle. So let's start. So the next theorem and very first theorem is equal chords. Equal chords of congruent circles. Congruent circles subtend equal angle. Subtend equal angle at the center. Equal chords of congruent circles subtend equal angle at the center. This is the network problem, not my fault. So we will already talk about the congruency of circle. Two circles are said to be congruent if the radii of the circles are equal. तो यहाँ पे यही क्या है, हमने दो सर्किल लेने हैं, ठीक है? जैसा थ्योरम का स्टेटमेंट है वैसा कंडीशन हम लोग पालें। इक्वल कॉर्ड, मैं दो कॉर्ड ले रहा हूँ, इसमें एक कॉर्ड ए बी है और इसका कॉर्ड क्या है, सी डी है। दोनों में रिलेशन क्या है, बोथ द कॉर्ड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ए बी इक्वल टू सी डी। लेट्स ये सर्किल सी ओ आर और ये सर्किल ये है सी ओ डैश आर डैश। The rotation of circle is written as COR, that means O is the center, R is the radius, as well as this circle indicate that O dash is the center and R dash is the radius. So we have to prove that. Now first of all join this center to this point OAOB and O dash C and O dash D. Let us consider two circles COR and CO dash R dash in which chord AB from circle COR, हमने chord AB को circle COR फर्स्ट सर्किल में से लिया है, and chord CD in circle CO dash R dash such that AB equal to CD. ये कंडीशन हमारे पास है, AB equal to CD. So what we have to prove? We have to prove the angle subtended by this chord at the center of the circles equal respectively. ए बी जितना एंगल सबस्टेंड करता है इस सेंटर पे उतना ही एंगल ए बी सबस्टेंड करेगा, ठीक है? तो यहाँ पर बहुत ही इजी है ये। ओ ए इक्वल टू होगा ओ डैश सी बिकॉज बोथ द रेडियाई ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, एंड देन ओ बी इक्वल टू होगा ओ डैश डी, दिस इज आल्सो द रेडियस ऑफ द congruent circle, and AB equal to CD is given. So we can say with the help of side congruency criteria, both the triangles are congruent to each other. Okay.
तो यहाँ पे भी लिख सकते हो आप OA इक्वल टू O डैश C बोथ आर इक्वल टू R, OB इक्वल टू O डैश D विच इज आल्सो इक्वल टू R एंड AB इक्वल टू CD, ये आपका है गिवन। देयरफॉर वी कैन राइट हियर ट्रायंगल OAB is congruous to triangle O dash CD by side congruency criteria, and hence we can say angle AOB equal to angle CO dash D are equal with the help of CPCT। ये क्लियर है? मैंने दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया और ये CPCT से एंगल इक्वल दिखाते हैं और यही हमें प्रूफ करना था। बोलिए आगे बढ़े। अभी मैं एक दो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इस थ्योरम के बाद, तो ध्यान से ये वाला थ्योरम पढ़िए। अभी मैं एक दो क्वेश्चन लिखूंगा, आप उनको सॉल्व करोगे और आंसर नहीं होगा तो मैं उसको बताऊंगा, और एनसीईआरटी का जो सॉल्यूशन होगा मैं वो कल की क्लास में बता दूंगा। तब तक आप लोग सॉल्व करते रहिए। सेकेंड थ्योरम इज इफ द एंगल सबटेंडेड बाय थ्योरम नंबर सेकेंड एट 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 फ्रॉम एनसीईआरटी। थ्योरम सेकेंड है एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन बोल दीजिए। इफ द एंगल सबटेंडेड बाय टू कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, इफ एंगल subtended by two chords of congruent triangle, congruent circle at the corresponding center, at the corresponding center, corresponding centers are equal, then show that या prove that, then show that chords are equal। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। So let's draw the figure of this theorem। We have to take two circles of different radii and different center, but the relation between them is that both the circles are congruent to each other. So let the circle whose center is O and radius R, and second one is whose radius is R and center is O dash. Now take two chord AB and CD. Consider, सबसे पहले जब आप कोई क्वेश्चन प्रूफ करोगे, अगर वो क्वेश्चन थ्योरम के फॉर्म में है तो आप पूरा स्टेटमेंट लिख के अच्छे से प्रूफ करोगे। You have write the statement also in proving the theorems. So consider two circle COR and CO dash R dash, in which angle AOB is equal to angle CO dash D, and this angle is same as the angle subtended by the chord AOB is the angle subtended by the chord at the center of the first circle, and CO dash D is the angle subtended by this chord at the center of the corresponding center of the circle। यही दोनों एंगल इक्वल दिया है ना, और ये दोनों एंगल कैसे हैं? कॉर्ड के द्वारा सेंटर पे बनाया गया एंगल है ये। तो हमें प्रूफ क्या करना है? टू शो AB इक्वल टू CD, कॉर्ड AB जो होगा वो कॉर्ड CD के क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। यही हमें प्रूफ करके दिखाना है इसमें। तो चलिए कंसीडर ट्रायंगल OAB and ट्रायंगल O dash CD, दो ट्रायंगल मैंने कंसीडर कर दिया और इनको मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दूंगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले कॉन्ग्रुएंसी देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड आउट द
condition of congruency of two triangles OA equal to O dash C and also OB equal to O dash G, because both all four are the radii of the congruent circles and angle between them are given is equal. So OA equal to OC, both are the equal to R, and congruency of triangle circle में radius of the both the circles are equal. Therefore, we can say that OA equal to O dash C as well as OB equal to O dash G, which is also equal to R, and angle AOB equal to angle CO dash G is given. Therefore, by side congruency, triangle OAB is congruous to triangle O dash CD by side angle side congruency criteria. तो यहाँ पे आप जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो AB equal to CD, AB equal to CD, and therefore corresponding part of congruent triangle. So I am going to ask a question. The statement of the question is question number 9 from your side. In the given figure, CD AB, देखो हमारे एक बार अब जिसको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा था वो एक बार क्वेश्चन ध्यान से समझे. कह रहा है इन द गिवन फिगर O is the center of a circle and in which chord AB and chord CD intersect at point P such that PO bisect angle BPD, prove that AB equal to CD. तो आप सॉल्यूशन में लिखो. सॉल्यूशन सबसे पहले कर लो ड्रॉ OE perpendicular to CD and OF perpendicular to AB. OE perpendicular to CD and OF perpendicular to AB. क्लियर है? अब देखो यहाँ पे मुझे दो छोटे छोटे ट्रायंगल मिल रहे हैं. अब पता नहीं इसमें दिख रहा है नहीं, इसको मैं डॉटेड कर रहा हूँ, थोड़ा सा गाढ़ा कर रहा हूँ. ये और ये बोलो, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है क्योंकि जो PO लाइन है वो एंगल BPD को इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है. क्वेश्चन में दिया है. और जब मैंने OE और OF परपेंडिकुलर लाइन एक एंगल यहाँ पे 90 मिला, एक एंगल 90 मिला. यहाँ पे कॉन्ग्रुएंसी की क्राइटेरिया मैं ढूंढ रहा हूँ ट्रायंगल POE और POF में. क्लियर है? ये देखो, नाउ कंसीडर ट्रायंगल POE and triangle POF. ठीक है, आवाज आ रही है? नाउ कंसीडर ट्रायंगल POE एंड POF. PO क्या है इसमें? OP और OP दोनों में क्या है? कॉमन है, कॉमन. और एंगल OPE, एंगल देखो OPE एंड OPF, एंगल OPE एंड एंगल OPF इक्वल. ये गिवन है, ये एंगल गिवन है. और तीसरा कंडीशन मिलेगा आपको OEP, एंगल OEP इज इक्वल टू एंगल OFP. ये दोनों कितने हैं? 90 के.
समझे? अब देख लो ओ ई पी ओ एफ पी, एक एंगल, ये एक एंगल और एक साइड, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया मिल गई आपको। दोनों ही ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गए। तो आप यहाँ से लिखो दिस इम्प्लाइज ट्रायंगल पी ओ ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी ओ एफ बाय एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। ट्रायंगल POE is congruent to triangle POF by angle side congruency criteria and therefore हम यहाँ से ये भी लिख सकते हैं OE equal to OF, लिख लो OE equal to OF by CP corresponding part of congruent triangle। जब आपने OE equal to OF प्रूफ कर दिया तो यहाँ से लिख लो ना डायरेक्टली AB equal to CD, ये देखो AB equal to CD। और ये आप नीचे मेंशन क्या करोगे? जब दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपने इक्वल प्रूफ कर दिया कि सेंटर से जो दोनों कॉर्ड है वो इक्वल डिस्टेंस पे हैं, वो दोनों कॉर्ड क्या होते हैं आपस में? इक्वल होते हैं। ऐसा थ्योरम मैंने पढ़ाया हुआ है, इक्वल कॉर्ड्स आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। एक और थ्योरम है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ये सारी चीजें हैं। अब देखो जब ये दोनों कॉर्ड के बारे में कुछ रिलेशन नहीं था, लेकिन हमने ये प्रूफ कर दिया कि OE और OF जो दोनों डिस्टेंस है कॉर्ड के सेंटर से वो इक्वल हो गए, तो हमारे कॉर्ड में क्या हो गया? आपस में इक्वल हो गए। क्लियर है? बोलो। क्वेश्चन में दिया था कि AB और CD दो कॉर्ड है, दोनों कॉर्ड एक दूसरे के पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करते हैं। इस पॉइंट P से जो लाइन जा रही है सेंटर पे O पे, तो लाइन OP जो बन रही है वो इस पूरे एंगल BPD को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके बाइसेक्ट कर रही है। यानी कि हमको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल पहले ही आपस में इक्वल दिया है, ठीक है? तो लास्ट में प्रूफ ये करना है कि जो दोनों कॉर्ड AB और कॉर्ड CD हैं वो आपस में इक्वल होंगे। मैंने पहला काम ये किया कि इस सेंटर से इस कॉर्ड CD पे और AB पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, OE और AB, OE परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड CD पे और OF परपेंडिकुलर ड्रॉ किया कॉर्ड AF पे, AB पे, ठीक है? तो हमें दो छोटे छोटे ट्रायंगल मिले, एक POF और एक POE और POF। हमने क्या करा, इन दोनों ही ट्रायंगल को मैंने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया एंगल साइड क्राइटेरिया से। कैसे? देखो ये जो लाइन OP है ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या है? कॉमन है। मैंने जब OE और OF परपेंडिकुलर गिराया है दोनों ही कॉर्ड CD और AB पे, एक 90 एंगल वो भी आपस में इक्वल हुआ है। और एक क्वेश्चन के बिगिनिंग में ये बोल रहा है कि लाइन OP जो है वह एंगल A और एंगल BPD पहले ही क्या है? बाइसेक्ट है OB के द्वारा, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल है। तो एंगल साइड क्राइटेरिया से क्या हो गया? ये कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो गया। जब कॉन्ग्रुएंट प्रूफ हो जाएगा तो OE इक्वल टू OF आप लिख लोगे CPCD से, और वो क्या है? वो डिस्टेंस है इसके सेंटर से इनके कॉर्ड के। और जब कॉर्ड से दो कॉर्ड हैं और दोनों ही सेंटर से इक्वल डिस्टेंस के हो गए, वो दोनों कॉर्ड ही क्या होता है? आपस में इक्वल होते हैं, जो कि एक थ्योरम होता है। क्लियर है? बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ, बोलो सॉल्व करिए उसको। अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर, क्वेश्चन, अ कॉर्ड ऑफ लेंथ 16 सेंटीमीटर is drawn in a circle of radius 10 centimeter. Find the distance of the chord. Find the distance of the chord from
the center of the circle. क्वेश्चन है